Hi, good morning, my dear student. Today we are going to read your chapter 2 in geography. In SST, as you know that you have three books, one history, one geography and one civics. In geography, the second chapter is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resource. My dear student, we have discussed in my previous class about land resource, water resource. Today we will read the natural vegetation and wildlife sanctuaries also. First, we will discuss natural vegetation. What is the meaning of natural vegetation and what is the meaning of wildlife sanctuaries? But before we start this chapter, I would like to recall you that what I have taught study in my class. Dear student, in my last class, I have discussed that the water resource. What is water resource? Importance of water, availability of water, use of water, and problem of water availability. And then after, I have also discussed the conservation of water resource. How can we conserve the water resource? In the last, I explained that in the human life, everywhere, water play very important role. Water resource is necessary needs for human beings. Without it, human life or animal life or plant, they cannot exist on earth. Water is essential resource for human being. We have all things I have discussed, and that is the main important topic what I taught you in my previous class, that you have to preserve water. Even water uses in various place like agriculture field, like industrial area, like domestic purpose. Everywhere we use water, but we have to concern about our needs to the water uses. We have always think that it is it is the precious resource. No, we can, if we can say कि ये कोई प्रीसियस नहीं, ये अमूल्यवान है जिसकी कोई कीमत नहीं है, इस तरीके का रिसोर्स है. इसलिए पानी को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है. इसे समझना, इसे व्यवस्थित करना और इसे सही ढंग से इस्तेमाल करना पूरे मानव जगत की जिम्मेदारी है, ह्यूमंस की ये जिम्मेदारी है. आज आपके इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन हम देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन कैसे इम्पोर्टेंट है, कैसे ज़रूरी है इंसान के लिए, एनिमल्स के लिए, और खुद नेचुरल वेजिटेशन अपने में कैसे इम्पोर्टेंट है एक दूसरे के लिए. ये टॉपिक अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है. ये टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रकृति की सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी में इनका बड़ा योगदान है. आंखों को भी सबसे अच्छा रंग, अकॉर्डिंग टू साइंस, आंखों के लिए सबसे फेवरेबल रंग होती है ग्रीन. और नेचुरल वेजिटेशन की कलर किस कलर का होता है? नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियाँ किस रंग की होती हैं? यस, दैट्स गुड, ग्रीन, हरी होती हैं. पेड़ों की पत्तियाँ हरी होती हैं, घास हरा होता है. चारों तरफ हरियाली आंखों को बड़ी ही सुंदर दिखती हैं.
मन को सुख देने वाली होती हैं। तो इसलिए टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन और फिर उसके साथ इंक्लूड है वाइल्ड लाइफ, इनको हम थोड़ा ध्यान से सीखेंगे और ये देखेंगे इसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे उनकी इम्पोर्टेंट हमारे लिए प्रॉपर बनी हुई है। शुरुआत करते हैं। कॉमन स्टेटमेंट आपके बुक में दिया हुआ है। सम स्कूल चिल्ड्रेन वर विजिटिंग an exhibition on the handicraft. The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag." "Yes, it is made from jute," the teacher said. "Do you see those baskets, lamp, shade, and chairs? Those are made of canes and bamboos. In the eastern and northeastern, the humid region of India, bamboo grows in plenty." Jessie was excited to see a silk scarf. "See this beautiful scarf." The teacher explained that silk is obtained from silkworm that are breed of mulberry trees. Children understood that plant provide us with many different products that we use in our day-to-day life. My dear student, in this paragraph, author want to inform you about the use of natural vegetation in human life. In our domestic life, which types of things are goods we used which made from the natural vegetation. जो प्रकृति के द्वारा या प्रकृति से बने हुए हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों से बने हुए हैं जो वस्तुएं, उनका मानव जीवन में कितना योगदान है। हम अपने दैनिक जीवन में जूट के बने बोरे, जूट के बने बैग, जूट के बने थैले, बांस के बने आपके घरों में कुर्सियां होंगी, बांस के बने मेज, टेबल और तमाम तरीके के हैंडीक्राफ्ट आपको अपने घर में आसपास दिख जाएंगे। माँ जिस चौके बेलने पे खाना बनाती है, रोटी से बनाती है, चौका बेलना आपको लकड़ी का मिलेगा। जिस पे आप बैठते हैं, फर्नीचर लकड़ी के हैं, दरवाजे लकड़ी के हैं। मानव के जीवन में, दैनिक जीवन में, पर्सनल लाइफ में नेचुरल वेजिटेशन का बड़ा महत्व है। और इसी तरह के बच्चों को समझाने के लिए टीचर्स एक टूर ले जाते हैं। ऑथर आपका यहीं से स्टार्ट करता है। A tour organized by school where the craft fair organized some place. Teacher went there along with their student. The student, having seen that the things which is made by natural vegetation, they become very astonished that how it possible. और तब टीचर उनकी ये क्यूरियोसिटी को दूर करते हैं। आइए देखते हैं। कहते हैं अब आपको जो हमने पैराग्राफ पढ़ा उसकी मीनिंग बता देते हैं। कहता है स्कूल के बच्चे वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन, एक एग्जीबिशन देखने गए। उस एग्जीबिशन में बहुत सारी वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न जगहों से लाई गई थी। भारत के अनेक प्रांतों की अपनी अलग अलग स्पेशलिटी है, क्लाइमेटिक स्पेशलिटी है। नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन, सबकी अपनी स्पेशलिटी और सबकी अपने क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग नेचुरल वेजिटेशन, और उस नेचुरल वेजिटेशन का इस्तेमाल मानव किस तरह से करता है। इन चीज़ों के आधार पे जो वस्तुएं बनाता है, उन वस्तुओं का एक एग्जीबिशन यहाँ पे लगाया गया था। एक प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई थी जिसमें बच्चे टीचर के साथ देखने जाते हैं।
द आर्टिकल इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जो भी चीज़ें उस एग्जीबिशन में थी वो भारत के सभी प्रांतों से कलेक्ट करके लाई गई थी। मैनी पिक्ड अप बैग। मोना, मोना जो लड़की है वो एक बैग उठाती है और आश्चर्यचकित होकर कहती है कितना खूबसूरत है, दिस इज ब्यूटीफुल हैंड बैग। टीचर कहते हैं यस इट इज मेड फ्रॉम जूट। हाँ, ये जूट से बना हुआ है। जूट के सबसे अधिक कारखाने आज भारत में, भारत पार्टीशन के समय कारखाने चले गए पाकिस्तान में, और जूट की खेती भारत में बंगाल में बड़े पैमाने पर होती है। तो जूट, आज कारखानों का विकास हुआ भारत में। आज भारत में भी बहुत सारे कारखाने बन चुके हैं, फैक्ट्रीज बन चुके हैं जूट के, इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है जूट की, और इसी जूट से ही बने हुए जूट का निर्माण। सही बैग मोना देख के आश्चर्यचकित होती है और कहती है कि हाउ स्ट्रेंज, इट इज सो ब्यूटीफुल। टीचर सेड यस इट मेड फ्रॉम जूट, जूट से बना है। डू यू सी दोज बास्केट्स, लैम्प, क्या आपने वो टोकरियाँ देखी, लैंप देखे, सेट्स देखे, कुर्सियाँ देखी हैं घरों में इसका इस्तेमाल होता है, जो बांस से बने हुए, बैम्बू से बने हुए। आपने अपने घर में छोटे छोटे, जिसको सामान्य कॉमन भाषा में बोलते हैं दौरी, इट मीन्स खांची, इस टाइप ऑफ बास्केट्स। कॉमन लैंग्वेज में बहुत सारे शब्द हैं उसके, दौरी, खांची, और क्या बोलते हैं उसको, ढेकुली, इस तरह के तमाम सारे शब्द आप घर में देखिए। आपके घर में यत्र तत्र वो दिखेगा। माँ का सूप, जिससे चावल वो पचोड़ती साफ करती हैं। डगरा जो गोल का होता है, गोल सर्किल साइड शेप का होता है, जैसे चावल सही से करते हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें आपको घर में बांस की बनी हुई चीज़ें दिख जाएंगी। ये सारी चीज़ें किससे बन रही हैं? दैट इज ऑल मेड फ्रॉम नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वस्तुओं से बन रही है। कह रहा है कि जो बांस है, स्पेशली जो बांस, वो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया कौन सा होगा भारत का? यस दैट्स गुड, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया आपका सेवन सिस्टर्स, बंगाल को छोड़ के आप ऊपर जाइए, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे क्षेत्र आपके उसमें आ जाएंगे। इन सारे क्षेत्रों की काउंटिंग उसमें आप कर सकते हैं। इसके आधार पे आप कह सकते हैं कि ये सारे वो प्रदेश हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आएंगे या ईस्टर्न रीजन में आएंगे। तो कहता है कि यहाँ पे बांस काफ़ी लंबे होते हैं और बांस का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे अब किसके लिए हो रहा है? कुटीर उद्योगों के लिए हो रहा है। जो मिनी इंडस्ट्री है, माइक्रो इंडस्ट्री है, उसके लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है। बड़े पैमाने पे ये लोग इनसे ये छोटे छोटे जो हैंडीक्राफ्ट है वो बना रहे हैं। जो ये आर्ट एंड क्राफ्ट की जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है इनके आधार पे, वो महत्वपूर्ण है। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, एक स्कार्फ उठा के एक बच्ची कहती है ये कितना सुंदर स्कार्फ है। टीचर कहता है यस ये सिल्क से बना हुआ है। सिल्क क्या है? सिल्क वर्म से बना, और सिल्क वर्म क्या है? ये मलबरी टाइप्स का सिल्क वर्म है। लड़का इस चीज़ को समझ जाते हैं, सभी लोग समझ जाते हैं कि हमारे जीवन में जो दैनिक चीज़ें हैं वो कितनी उपयोगी हैं, कितनी ज़रूरी हैं। ये बातें सबके समझ में धीरे धीरे आने लगती है। अब बातें करेंगे मेन डिफिनीशन की, जो एग्जाम में आएगा आप उसको लिखेंगे। एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, एक्सप्लेन। तो आपको लिखना है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर that we called biosphere. Here one question arise that what do you mean by biosphere? बायोस्फीयर किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं कि द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन
लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, दैट वी कॉल बायोस्फीयर। अब आगे कहता है कि इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग आर इंटर रिलेटेड and interdependent on each other of survival. This life supporting system is known as ecosystem. Second definition आपको मिला. What do you mean by ecosystem? कहता है in biosphere the living being are interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as ecosystem. Ecosystem क्या है? कहता है इकोसिस्टम कि बायोस्फीयर में लिविंग बींग्स जो जीवित पदार्थ हैं उनका इंटर रिलेशन, एक दूसरे के साथ एक दूसरे पे निर्भर रहना, एक दूसरे के साथ संबंध और एक दूसरे पे आश्रित होना, निर्भर होना और अपने जीवन को जीना, तो जो ये सपोर्टिंग लाइफ सिस्टम चल रही है दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। दूसरी डेफिनेशन आपको मिली, vegetation and wildlife are valuable resource. Natural vegetation, it means plants, trees, herbs, and wildlife, animals who lived in forest. These are all, not only here animals, it does never mean that only animals. Animals, it means animals, birds, insects, and little bits, जितने भी तरह के creatures हैं वो सब फॉरेस्ट में जो पाए जाते हों, रेप्टाइल्स, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल रिसोर्स। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन माने जाते हैं। कहते हैं वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्स। प्लांट प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, प्लांट्स provide us with timber, give shelter to animal, produce oxygen we breathe, protect soil so essential for growing crops, act as shelter belts, help in strong of underground water, give us fruits, nuts, latex, turpentine, tarpaulin oil, gum, medical plants, also the paper that is essential for your study. There are innumerable uses of plants and you can add some more. Innumerable, कितनी बड़ी बात करें कि ये सारी चीज़ें, ये सारे जो यूज कर रहे हैं वो बेहद कीमती है आपके लिए। आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये कितनी ज़रूरी है आपके लिए। इन्हीं चीज़ों को ऑथर आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है, बताने का प्रयास कर रहा है। ऑथर वांट टू एक्सप्लेन यू, ऑथर वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज ट्रीज, दीज प्लांटेशंस, दीज नेचुरल वेजिटेशंस, एनिमल्स। These are the very important things. And their use is innumerable. आप कल्पना नहीं कर सकते, संख्या में गिनती नहीं कर सकते कितने अधिक मात्रा में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक बार फिर देखिए कितना आसान इजी लैंग्वेज में आथर आपको समझा रहा है। आथर कहता है कि प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, ये पेड़ पौधे हमें लकड़ियाँ प्रदान करते हैं। गिव शेल्टर टू एनिमल, जानवरों को आश्रय देते हैं, उनको घर प्रदान करते हैं। जंगलों में रहने के लिए जानवरों को घर, शेल्टर, आश्रय, शरण देते हैं। प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। प्रोटेक्ट सॉइल सो इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं जिससे वो उत्पादन की क्षमता बढ़ाए। एक्ट एज शेल्टर बेल्ट, एक शेल्टर बेल्ट के रूप में अपने कार्य को करते हैं। स्टोरेज अंडरग्राउंड वाटर आल्सो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल, पानी की जो पृथ्वी में अंदर पानी की जो स्टोरेज है उसको भी बनाए रखते हैं। ये मिट्टी को बांध के रखते हैं जिससे सॉइल इरोजन ना हो। और उसके बाद हमें देते हैं बहुत सारी चीज़ें फ्री में, फ्री ऑफ कास्ट, गिव्स अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, तारपीन ऑयल, गम,
medicinal plants, and also the paper that we essentially use in study. पेपर भी देते हैं जिसका इस्तेमाल हम अपने पढ़ाई में करते हैं, स्टडी में करते हैं. देयर आर इन्यूमरेबल यूज ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर. असंख्य है इसका इस्तेमाल इस नेचुरल वेजिटेशन का हमारे जीवन में होता है. इसकी काउंटिंग और भी चीज़ें आप इसमें जोड़ सकते हैं, और भी चीज़ों की आप काउंटिंग कर सकते हैं. आप आसानी से इन चीज़ों को गिना सकते हैं. ये आपके ऊपर है, आप काउंट कर पा रहे हैं या नहीं. कहता है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच, मतलब पृथ्वी, जल और वायु के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं. मैं आपको सीधे फिर से पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर. कहता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं. ये जो जैवमंडल है, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें सभी जीवित जातियां एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे पे निर्भर हैं. ये जो निर्भरता है, ये जो परस्पर संबंध है, इस जीवन आधारित तंत्र को ही इकोसिस्टम या पारितंत्र कहते हैं. वनस्पति, वेजिटेशंस, वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कीमती संसाधन माने जाते हैं, रिसोर्स माने जाते हैं. कैसे? जैसे पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, आश्रय देते हैं, इनसे ऑक्सीजन उत्पन्न होता है जिससे हम सांस लेते हैं. फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मिट्टी और मिट्टियों की सुरक्षा प्रदान करते हैं. एक शेल्टर मेखला, एक शेल्टर बेल्ट के रूप में, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं. भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं और बहुत सारी चीज़ें, फल फूल हमें फ्री ऑफ कास्ट देते हैं. जैसे अगर करेंगे तो फल में लेटेक्स है, तारपीन का तेल है, गोंद है, औषधि पौधे हैं, कागज है, तमाम खाद्य फल हैं, आम, लीची, अंगूर, पपीता, संतरा, अनार, तमाम तरीके के फल नेचर हमें प्रदान करता है फ्री ऑफ कास्ट, गिफ्ट के रूप में. कहता है यहाँ तक जिस कॉपी पे आप लिख रहे हैं, पेज, पन्ने, उस पन्नों को बनाने में भी इनका बड़ा योगदान है. इस पेपर का योगदान है. पेपर को बनाने में पेड़ पौधों का योगदान है. द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन द प्रोडक्शन ऑफ पेपर्स. कहता है इतने यूज हैं. कह रहा है इसके अलावा भी इन्यूमरेबल यूजेस हैं जिसकी अकाउंटिंग आप खुद से करिए, आपको दिख जाएगा, उनकी ज़रूरतें आपको समझ में आ जाएंगी. कहता है कि उसके बाद अगर आप पैराग्राफ देखें तो पैराग्राफ में कहता है, आप यहाँ पे आप फोटो देख रहे होंगे, पिक. इस पिक में आपको क्या दिख रही है? सिल्क वर्म. कुछ किस पे है? एक पेड़ पे है सिल्क वर्म. इससे क्या बनाए जाते हैं? सिल्क, सिल्क के कपड़े. आप यहाँ पे एक लायन देख रहे हैं जो हंस रहा है पेड़ के नीचे, उस पर एक बर्ड बैठी हुई है. क्या शो करना चाहता है? बॉन्डिंग, डिपेंडेंसी, रिलेशन बिटवीन ईच अदर. जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे पे आश्रित है, निर्भर है. अब नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है, अब आप यहाँ देखिए, कह रहा है ब्रह्म कमल ऑफ द मेडिसिनल हर्ब्स. आपको ब्रह्म कमल दिख रहा है, ये क्या है? दैट इज द मेडिसिनल हर्ब. ब्लू किंगफिशर, हाउ ए ब्यूटीफुल वर्ड, ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑन अर्थ. भगवान ने इसे बनाया सुंदरता के लिए. देखिए आंखों को इतना सुंदर लग रहे हैं पक्षी, चिड़िया. तरह वाइल्ड लाइफ इंक्लूडेड एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, as well as
The aquatic life forms, they provide us milk, meat, hides and wool. Insects like bees provide us honey, help in pollution of flower and have to important role to play. The decomposer in the ecosystem, the bird feed in insects and act as decompressors as well. Vulture, due to its ability to feed on the dead livestock of the scavengers. Livestock is a scavengers and considered a vital clearness of the environment. So animals big or small, all are integral to maintaining balance in the ecosystem. क्या वाइल्ड लाइफ इंक्लूडेड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ के साथ जो एनिमल जुड़े हुए हैं सभी को एक साथ काउंट करके रहा है, बर्ड्स चिड़िया, इंजेक्ट्स छोटे कीड़े मकोड़े, एज वेल द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स, सभी क्या है, कह रहा है कि एज वेल एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स सब एक दूसरे से हमें महत्वपूर्ण रूप से जीवन को विकसित करने डेवलप करने में महत्वपूर्ण बात है. दे प्रोवाइड अस मिल्क, हमें दूध देते हैं, मीट देते हैं, हमें ऊन मिलता है, ऊन मिलता है इनसे. इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड, मधुमक्खियों से शहद, एंड हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का परागीकरण करते हैं जिससे मधु निकलती है और फिर फूल का पॉलिनेशन से फिर एक फूल खिलता है. तो जो ये प्रोसेस चल रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है. द वर्ड्स फीड इन इंजेक्ट्स एंड एक्ट द डिकम्पोजर एज वेल. छोटे छोटे जो अपमार्जक जंतु हैं, इंजेक्ट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो अपमार्जक के रूप में है. वो उन चीज़ों को ख़त्म करते हैं जो जो नष्ट होने के प्राय खड़ी हैं. कह रहा है गिद्ध जो प्रकृति का सफाई करता माना जाता है, वो डेड बॉडी को खा करके जल्दी से जल्दी नेचर को साफ कर देता है. ऑल आर द इंटीग्रल मीनिंग मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम. ये सारी चीज़ें इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं, इनका अपना योगदान है. देयर कंट्रीब्यूशन इज वेरी प्रीसियस, वी कैन नेवर फॉरगेट. We can think about their role in our environment, their place in our life. We always consider about that, and we should maintain that role. That live and let other live concept is very important for human being. You are a man, it does never mean that you have also authority to disturb the ecosystem. You have no authority to change the rule of God. So that's why, my dear student, always be careful for that. Be responsible, be accountable for your duties. You have to preserve and protect the natural vegetation. You have to protect the wildlife also, because as you know that it is very important. ये वन्य जीवन के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत जो ये बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे बर्ड, कीट, जलीय जीव के रूप में आते हैं, ये सब हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं. हमें दूध, मांस, चमड़े, ऊन इनसे प्राप्त होती है, हड्डियाँ भी मिलती हैं. कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों से परागकण में मदद करती है, और पारतंत्र में अपघटक के रूप में, अपमार्जक के रूप में, डिकम्पोजर के रूप में ये जो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं. चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में ये कार्य करते हैं. गिद्ध मरे हुए जानवरों को खा पी के एक वातावरण को, पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करता है, पर्यावरण को शोधक करता है.
इसलिए प्राणी चाहे जो भी हो, बड़े हों छोटे हों, सभी पारतंत्र के संतुलन बनाने के लिए, सभी इकोसिस्टम का बैलेंस बनाने में अपना रोल अपनी अपनी जगह निभा रहे हैं। ये चीज़ें हमें नहीं भूलनी चाहिए, हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।